नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। आप सिर्फ केवल 3 दिन जाप कीजिए और कोई भी मन्नत मांग के रखिए दिल में, किसी को बताइएगा नहीं, मन्नत मान के रखिए और 3 दिन सिर्फ ओम नरेंद्र मोदी नमः का जाप कीजिए, चमत्कार होगा। आप मुझे फोन करके बोलेंगे कि ये काम मेरा हो गया। Good evening, ladies and gentlemen, and everyone who still has a functioning sense of irony. Today, we're doing something very, very special, something historic, something that future historians will look back on and say, ah, yes, this is the exact moment the country collectively lost the plot. You see, on Thursday at the Press Club of India, that sacred temple of free speech and uncomfortable questions, a group of devotees gathered. Not to ask the Prime Minister anything, of course not, but to recite the Sri Sri Modi Chalisa. Yes, the Sri Sri Modi Chalisa. गुजरात की पुण्य भूमि पर जन्म लियो पावन कुल सुंदर, मातु हीरा वाक्य सुत ज्ञानी, सादगी की मूरत कल्याणी। बालपन से सेवा मन ध्याया, देश प्रेम उर्मे बसाया। जय जय मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी। The same format our grandparents used for Hanumanji. The same rhythm, the same devotion, just slightly different object of worship. And because the universe has a sense of humor sharper than any comedian, they did it at the site of a proposed temple dedicated to the man himself, right there in the middle of the press club. So today, in the spirit of national security, national unity, spiritual innovation, and absolute zero self-awareness, we are going to join them. Please put your hands together, open your hearts, and if you feel the need to touch the ground, then do that. And then if you want to put your forehead on the ground on every line, please go ahead and do that. This is Modi Chalisa. धारा 370 हटाई, एक राष्ट्र की जोर बढ़ाई, कश्मीर में तिरंगा लहराया, एकता का संदेश सुनाया। अयोध्या में प्रभु राम पधारे, भव्य धाम के काज सवारे, काशी महाकाल धाम सवारे, सनातन के दीप उजारे। विश्व मंच पर मान बढ़ाया, भारत का कौलम जग छाया। जय जय मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी। जय जय मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी, घर घर मोदी. I just hope the Wi-Fi at Press Club is strong enough to stream the Aarti live. And who organized this spiritual masterclass, you ask? None other than our very own transgender community leaders, Dr. Rajan Singh and Mahamandaleshwar Bhaivavi Maharaj, who decided if the nation can have a Ram Mandir, then why not a Modi Mandir? And why not start the trial run inside the press club itself? इस प्रस्ताव के साथ में राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड बिहार सरकार द्वारा करीब 112 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, जो 5 एकड़ भूमि में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर बनेगा। By the way, KYC, Dr. Rajan Singh is part of Bihar government. Double engine. Now these were not amateur people. They came prepared. Proper big flex banners, full Chalisa printed in bold letters, on the flex, hanging like something divine, coming down slowly from the sky. Because using a teleprompter would have been an insult to Vishwaguru, Western technology, so they went absolute desi. Literally a flex hanging, every line written, eyes fixed on the flex, voice rising, reading line by line like school children doing morning assembly. Except the morning assembly was about the living God currently in office. And of course, they called the cameras, the media, the ever obedient devotees, arrived on time, set up the tripods,
and recorded the entire saga without a single awkward question. No, sir, this is not appropriate. No, ma'am, should a living politician have a Chalisa? None of that was asked. Just pure, uninterrupted, on camera devotion. So, ladies and gentlemen, this was not just an event. This was cinema. This was history. This was the first ever Modi Chalisa live on camera at the Press Club of India. वो वह व्यक्ति है, वो एक जीवंत शक्ति है जो इन 6 गुणों को धारण किए हुए हैं, जिसके ये 6 गुण होते हैं: ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। इस प्रकार जितने भी गुण हैं वो भगवान धारण करते हैं। और आप देख सकते हैं वैराग्य भी हमारे मोदी जी के अंदर है, क्योंकि वो इस पूरे समाज के लिए कार्य करते हैं। वो अपने व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के लिए नहीं करते। और इसी प्रकार वो ज्ञानी भी हैं, उनके पास महालक्ष्मी की भी कृपा है, यश भी है, और उनके पास हर प्रकार का ऐश्वर्य। तो वो इन 6 गुणों से विद्यमान वो व्यक्ति है, इसीलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। जय जय फ्लेक्स, जय जय कैमरा, जय जय ओबीडियंस, जय जय कैमरा। Right? You remember, Modi ji himself had said, कभी कभी लगता है मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं. Remember? He said that. मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है, और प्रेरणा भी वही दे रहा है। मुझे भी कभी कभी लगता है मैं ऋतिक रोशन हूं. And let's not forget the divine visual they had provided. They had placed a full-size cutout of Modi ji standing tall as Prabhu Ram himself, crowned with the peacock feather, golden jewelry, blue dhoti, bow in hand, arrows on the back, and the exact same serene expression we all know so well, just slightly more divine today. They didn't even bother with the half Vishnu experiment. Straight upgrade. Full Prabhu Ram avatar, ready for the aarti. Only one small issue. They forgot the extra hands. Really? You're talking about Prime Minister Modi. 2 hands? 2 hands for Vishwaguru? That's underwhelming. At least 4 hands. 4 hands were mandatory. 6 would have been respectful. 8 or maybe 10. And looking at that cutout, I couldn't help but think, have you seen this character before? Somewhere in Bahubali? That glowing, larger than life, half god, half warrior, standing in middle of the frame, while everyone else bows. No, don't say it. This is not psychophancy. This is not flattery. This is pure, unfiltered, undiluted devotion. This is love. You accept it. And if you can't, then leave it. You are an anti-national. The same love that makes people print Chalisa on flags. The same love that makes media run the entire video without cutting a single awkward second. The same love that turns a living politician into a walking avatar while the cameras kept rolling. That same love. So we decided to connect with the man himself, Dr. Rajan Singh. Purely out of respect, purely out of love. Dr. Rajan Singh, the man who organized the entire Modi Chalisa, we ought to connect with him. आज कैसा लग रहा है? आजादी के बाद इस देश में कभी किन्नरों को तो सम्मान मिला नहीं था, लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे आराध्य भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य चालीसा का पाठ हुआ है, और जल्दी ही अब हमारे भगवान का, क्योंकि मंदिर बनने वाला है, तो इसलिए जिस दिन से शुरू हुआ है इस कार्यक्रम, वैसे ही उस दिन से ही खुशी का माहौल है हम लोगों के लिए। तो अच्छा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके लिए भगवान है? नहीं, मेरे लिए ही नहीं सर, लाखों लोगों के लिए जिनको आज तक इज्जत सम्मान नहीं मिला था। किन्नरों को कभी इज्जत सम्मान नहीं दिया किसी प्रधानमंत्री ने।
आज पहली बार इस देश के अंदर में जब प्रधानमंत्री भगवान नरेंद्र मोदी जी उन्होंने 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, तब जाके तो हम सारे लोगों को इज्जत, सम्मान, नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है। तो हम लोगों के लिए तो खुशी इस बात की है कि जिन्होंने हमें ये अधिकार दिया, आज हमने उन्हीं को अपना आराध्य माना और उनके लिए हमने पूजा पाठ की पद्धति शुरू की है। उनका, क्योंकि अब पटना में आप जान रहे हैं भगवान नरेंद्र मोदी का भव्य मंदिर बनने वाला है, तो अच्छा, इसीलिए बहुत खुशी है। मंदिर बन रहा है? जी, मंदिर बन रहा है भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का। बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड, बिहार सरकार ने इसका प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। 112 करोड़ से ऊपर की लागत का यह मंदिर बनेगा और 5 एकड़ में यह मंदिर होगा, जिसके अंदर भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की सोने की मूर्ति स्थापित की जाएगी, उनके कद के बराबर। सोने की मूर्ति? जी, भगवान नरेंद्र मोदी जी की सोने की मूर्ति। 112 करोड़ का मंदिर? जी, 112 करोड़। और ये बिहार सरकार ने अप्रूव कर दिया? जी सर, बिहार सरकार ने अप्रूव की। तो ये 112 करोड़ बिहार सरकार देगी? हाँ, बिल्कुल बिहार सरकार देगी। आज तक कभी किन्नरों को तो कुछ मिला ही नहीं ना। सब लोगों ने अपना अपना मंदिर, अपने देवी देवताओं का मंदिर तो गली मोहल्ले में एक एक, चार चार, पांच पांच खोल लिया। पहली बार किन्नर समुदाय को अधिकार देने वाले उनके भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बन रहा है, तो बिहार सरकार पैसा देगी। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भी एक इंसान है। तो भगवान राम जी भी तो इंसान थे। उन्हें जब वो जीवित थे तभी कौशल्या माई, केकई जी, सबरी मैया, अहिल्या मैया, केवट जी, निषाद जी, सुग्रीव जी, बाली जी, सब लोग उनको भगवान मानते थे जीवित रहते हुए। तो भगवान नरेंद्र मोदी जी भी जीवित हैं। और वैसे भी देखिए, कलयुग में ये आशीर्वाद किन्नरों को ही मिला है कि वो भगवान के अवतार को देख पाए। तो वो हमारी ही तीसरी आंख है, जिससे हम भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान श्री राम के अवतार में जो उन्होंने जन्म लिया है उसको देख पा रहे। भगवान श्री राम जी के ही अवतार है भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, मोदी जी एक बार कहे भी थे कि उन्हें कभी कभी लगता है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। वो तो भगवान है, वो दयालु है, वो सब पर दया करते रहते हैं, चमत्कार करते हैं। कई बार चमत्कार होता है। और वो जब देखिए, भारत ही भूमि को देख लीजिए ना, कितना मान सम्मान बढ़ गया है विश्व भर में भारत का, जब से प्रभु ने अपने चमत्कार, अपनी लीलाएं दिखाना शुरू की। तो अभी तो बहुत चमत्कार होने बाकी। सर, देश में बुरा मत मानिएगा, प्रधानमंत्री की इज्जत तो सभी कोई करेगा, देश का हर एक नागरिक करेगा। लेकिन बुरा मत मानिए, लेकिन देश जब आजाद हुआ उसके बाद फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कोई मंदिर नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई मंदिर नहीं है। अगर ये लोग नहीं रहते तो देश आजाद ही नहीं होता। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, उनका भी कोई मंदिर नहीं है। देश आजाद हो गया, लेकिन किन्नर लोग आजाद हुए? किन्नरों का क्यों आजादी के बाद कोई भी एक IAS IPS नहीं बन पाया? क्यों इस देश में भगवान नरेंद्र मोदी जी जब आए, उन्होंने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, उसके बाद आज किन्नर लोग दरोगा और डॉक्टर, इंजीनियर बन पाए। अगर ये लोग पहले ही सोचे होते तो आज किन्नर लोग एक तो IAS होता, एक IPS होता। नहीं हुआ हमारे समुदाय का कोई। भगवान नरेंद्र मोदी नहीं होते तो हम लोगों को सचिवालय के गेट में घुसने नहीं दिया जाता था। आज भगवान नरेंद्र मोदी जी का ही चमत्कार है कि किन्नर समुदाय के लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। आम जनता शायद अभी समझ नहीं पा रही है, लेकिन जब भगवान उनको पता चलेगा, और अब वो देखना शुरू हो गया है, जब से ये बात आई है लोगों के सामने, लोग उनको मानने लग गए हैं, लोग समझने लग गए हैं। हम भगवान श्री राम जी को भगवान क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने अहिल्या जी का उद्धार किया था, मां सबरी जी का उद्धार किया था। भगवान नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? मुस्लिम महिलाओं का उद्धार किया, और जो 3 तलाक और हलाला जैसे कानून थे उसको खत्म किया। उसके बाद भगवान श्री राम जी ने केवट का उद्धार किया, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने किन्नरों का उद्धार किया। तो ये तो भगवान श्री राम ने जो जैसे जैसे किया,
वैसे हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी लीलाएं दिखाकर आम जनता का, हर समुदाय का कल्याण कर रहे हैं। लेकिन सर खराब नहीं लगता है कि जब जब भगवान आपके लिए भगवान है, जब आपका भगवान लोगों के साथ सामने वोट मांगते हैं, जब उनको प्रधानमंत्री का दफ्तर जाना होता है, जब उनको काम करना पड़ता है, खराब नहीं लगता है कि भगवान को राजा रामचंद्र जी भी जाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, अपने अयोध्या में घूमते थे, अयोध्या के दुख के को हरते थे। वैसे ही भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी भी भारत भर में घूमते हैं, लोगों के दुख को हरते हैं, जो देखते हैं कि पीड़ित समुदाय है उसका कल्याण करते हैं। अपने समय में उन्होंने अपने दिव्य चमत्कार से किन्नरों का कल्याण किया और उसका जीता जागता प्रमाण मैं आपके सामने बैठा हूं। आप बताइए। आपको लगता है प्रधानमंत्री में दिव्य शक्ति है, वो भगवान के बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बल्कि बोलना चाहता हूं, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। आप सिर्फ केवल 3 दिन जाप कीजिए और कोई भी मन्नत मांग के रखिए दिल में, किसी को बताइएगा नहीं, मन्नत मांग के रखिए और 3 दिन सिर्फ ओम नरेंद्र मोदी नमः का जाप कीजिए, चमत्कार होगा। आप मुझे फोन करके बोलेंगे कि ये काम मेरा हो गया। और अगर ना हुआ तो? नहीं हुआ तो फिर मुझे बताइएगा, तब हम लोगों को लगेगा कि भाई अलग बात है। अच्छा, हाँ, फिर से मंत्र बोलिए, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। 3 दिन आपको बोलना है। कितना बार बोलना है? जितनी बार आपकी इच्छा। अच्छा, तो अभी मैं भगवान राम का नाम ना लूं? नहीं, राम जी का नाम लीजिए। हम तो बोले हैं ना कि जग में प्यारा है 2 नाम, कृष्ण कहो या जय मोदी का लो नाम। जग पहले बोला जाता कृष्ण कहो या राम। आप कह रहे हो कि पहले कृष्ण कहो या कहो मोदी जी का नाम? नहीं, मोदी जी का नाम इसलिए क्योंकि वो तो साक्षात अभी है ना, वो तत्काल कृपा बरस जाएगी। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए, प्रभु श्री राम को तो सब मानते हैं, लेकिन मोदी जी को सब नहीं मानते। उनके पास नहीं, बिल्कुल सब मानते हैं, सब मानते हैं। नहीं सर, डेमोक्रेसी में 40% वोट शेयर उनके पास है, 40 समथिंग, करीबन 57%, 60% वोट शेयर उनके पास नहीं है। तो जो लोग अभी भगवान नरेंद्र मोदी को नहीं मान रहे, तो उनको क्या कहेंगे? भगवान श्री राम को सब लोग भगवान मान गए थे, एक जना नहीं मानता था, रावण नहीं मानता था। और वैसे ही श्री राम जी के अवतार नरेंद्र मोदी जी को सब भगवान मानते हैं, रावण और रावण की सेना के लोग नहीं मानते, मतलब राहुल गांधी नहीं मानते। तो राहुल गांधी जो है रावण है और उनकी सेना जो है वो रावण की सेना है, जो भगवान के चमत्कार को नहीं पहचान रही और नहीं पहचानेगी तो विनाश होगा। राहुल गांधी जी अगर भगवान श्री नरेंद्र मोदी को नहीं पहचानेंगे, उनका विनाश होगा। तो राहुल गांधी रावण है, अखिलेश यादव रावण है? नहीं, अखिलेश जी नहीं, अखिलेश जी तो भगवान नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं। भक्त हैं अखिलेश यादव, भगवान नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं। वो जब भी पार्लियामेंट जाते हैं, मोदी जी को देखते हैं तो तत्काल उनके पांव छूते हैं। अच्छा, और अरविंद केजरीवाल? ये मेघनाथ है, मेघनाथ। इसीलिए सबसे पहले भगवान ने इसका अंत किया, अरविंद केजरीवाल जी का अंत किया, मेघनाथ जी का, और अब समय आ रहा है धीरे धीरे रावण का अंत, राहुल गांधी के अंत का। और ममता बनर्जी? सुपनखा, सुपनखा। ये आप मजाक में मत लीजिएगा, ये किन्नरों को ही ये दृष्टि है कि वो इंसान के असली रूप को पहचान सके। मैं एकदम सीरियसली लिया हूं सर, आपने कहा तो मैं कल से मैं आज ही से जप करना शुरू करूंगा, ओम नमो नरेंद्र मोदी नमः। ओम नरेंद्र मोदी नमः। अब उल्टा मंत्र पढ़िएगा और चमत्कार नहीं होगा तो मत बोलिएगा। ओम नरेंद्र मोदी नमः।
ओम नरेंद्र मोदी नमः। पूरा नाम लीजिए ना, नमो से काम नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी नमः। ओम नरेंद्र मोदी नमः। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सर, ये चालीसा किसने लिखा? देखिए, चालीसा तो मैंने लिखा और इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा। हमारी टीम के अंदर में महामंडलेश्वर वैष्णवी जी है जो किन्नर अखाड़ा की हैं, आदरणीय सैम विलियम्स जी हैं जो कि ईसाई समुदाय की हैं लेकिन भगवान नरेंद्र मोदी में पूर्ण आस्था रखती है वो। उसके अलावा हमारे यहाँ के लोग हैं, कई लोग हैं ऐसे जो भगवान नरेंद्र मोदी जी में आस्था रखते, सबने मिलजुल के इस पुण्य कार्य को किया, इस पुनित कार्य को किया। अच्छा सर, ये हम लोग हनुमान चालीसा सुने हैं, अभी आप मोदी चालीसा बोल रहे हैं, तो सही है, आप मुझे मोदी चालीसा का कुछ लाइन सुना दीजिए। देखिए, मोदी चालीसा का तो हम बोले ही हैं, श्री राम जय श्री मोदी, श्री राम जय श्री मोदी, श्री राम जय श्री मोदी, श्री राम जय श्री मोदी। तो ये यहां से शुरू होता है, 40 लाइन का चालीसा है और कुछ लाइन एक एक सुनाइए, कुछ पंक्तियां सुनाइए। जिसमें हमने उसमें जोड़ा हुआ है, जय श्री मोदी कृपा दयालु, जय श्री मोदी कृपा दयालु, जय श्री मोदी कृपा के देव, जय श्री मोदी कृपा के देव, जय श्री मोदी। फिर उसका हमने एक दोहा भी है जो महत्वपूर्ण दोहा है, वो मैं आपको 2 लाइन का बस सुना देता हूं, फिर तो ऐसे काफी बड़ा हो जाएगा वरना। सुमिर चरण भारत जननी, बुद्धि विद्या वरदान, नमो नमो श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्र करो कल्याण, कर्मठ त्यागी वीरवर, जनगण मन आधार, नव भारत के शिल्पकार, तेरी महिमा अपरंपार, जय जय मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी। ओम नरेंद्र मोदी नमः। ओम नरेंद्र मोदी नमः। सर, हनुमान चालीसा हम लोगों को हनुमान चालीसा का क्या होगा अभी? हनुमान चालीसा, हनुमान जी तो अमित शाह जी हैं जो संकट मोचन है, भारत के हर संकट को हर लेते हैं। सर, अभी हाल में हम लोग ने देखा ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, जंतर मंतर में बच्चे लोग आए, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहा, पोस्टर रखे, उन्होंने कहा कि उनके लिए भगवान है नहीं नरेंद्र मोदी, उल्टा सीधा बोला। आपको पता है ये सब राहुल गांधी की राक्षसी सेना थी। हाँ, राक्षसी सेना। अच्छा, अब आपको मैं पूछता हूं, ये जेनजी जो नाम आया वो कहां से आया? ये सब चाइना का प्रोडक्ट था, ये कोई जेनजी पेंजी नहीं होता है, ये सब चाइनीज प्रोडक्ट है। और ये भारत में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी, जैसे रावण के जब युद्ध होने वाला था तो बहुत सारी सेना आई थी भगवान राम जी को मारने, लेकिन विनाश होता गया। हालांकि हमारे भगवान जो है वो राम जी के अवतार हैं तो अत्यंत दयालु हैं, वो तो सबको माफ करते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, माफ कर दिए। उतना दयालु भगवान इस सृष्टि पे तो भैया इस युग में अवतरित होना ही मुश्किल। भगवान सबका रक्षा कर पा रहे लेकिन अपने मंत्री का रक्षा नहीं कर पाए, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। हाँ, तो जो पापी होगा वो दे देगा भाई। हमारे को, हम एक चीज जानते हैं, हमारे को भगवान नरेंद्र मोदी जी ने अधिकार दिया, उनको हम भगवान मानते हैं, इसके अलावा हमारी किसी के अंदर कोई श्रद्धा नहीं। You know what? Just a month ago, the country was in a different mood altogether. Gen Z turned up at Jantar Mantar in large numbers. They came without fear of showing their faces. They said things that do not fit into any official eulogy. The protest began over paper lakes and the education system, but it quickly became something larger, a raw,
expression of frustration over jobs, fairness, and growing distance between those who govern and those who are governed. What stood out was the complete absence of awe. They carefully cultivated larger-than-life imagery, the 56-inch chest mythology, the carefully constructed aura of invincibility. None of it worked. None of it worked on them. ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ 36 दिनों में हिंदू मुस्लिम की राजनीति अगर नहीं होगी, बस मुद्दे की राजनीति होगी, तो बड़े बड़े सियासत डोल जाएंगे. It neither intimidated them nor seduced them. For the first time in a very, very long time, a generation looked at power and treated it as power, not as divinity. डर कौन चीज का लगेगा? इस देश में डेमोक्रेसी है, फिर डर कौन चीज का लगेगा? डिक्टेटरशिप थोड़ी है जो डर लगेगा. अच्छा, कहाँ से आए हो सर? मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ. मुझे आप थोड़ा पोस्टर ऐसे कीजिए, बिकॉज वो शब्द अनपार्लियामेंट्री है ना. यूट्यूब में हम लोग को स्ट्राइक मिल जाएगा. यूट्यूब में दिखाएंगे तो हम लोग को घचा बंद कर देगा. अरे सर, इसमें मतलब है दफा हो जाओ. अच्छा, मीनिंग ये That protest was a clear message to the BJP that accountability is not optional. No one is non-biological. No one is above scrutiny. If you are in power, you remain answerable to the ground. The impact was visible almost immediately. Forget the fact that Dharmendra Pradhan had to resign. The government held internal meetings focused on connecting with the Gen Z. फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. Prime Minister Modi himself began posting casual Instagram videos, front camera ones, more informal, more relatable. The first one drew sharp criticism. It was a bit slow. The subsequent ones came faster. The pace was perfect. थैंक यू फ्रेंड्स. कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी. ये आपका प्यार बना रहेगा. हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा. थैंक यू दोस्तों. The party changed its long-serving IT cell in charge, Amit Malviya, after more than a decade. And these were non-cosmetic adjustments. They were acknowledgements that something had shifted. क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते. क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते. हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया. Even in cabinet meetings. Yes, that's what you're learning. News reports are suggesting that even in cabinet meetings, Prime Minister Modi is asking his ministers that go visit schools, universities, go connect with the Gen Z. Asking leaders as how many followers you have on Instagram. Why? A cabinet meeting is a forum where you connect to understand where your government stands, how better you can govern, not how to formulate politics so that you can stay in power and you can govern. And barely a month later, you now have Modi Chalisa. At the exact moment when a generation has rejected the idea of treating a living leader as larger than life, a section of people stages a full-fledged Chalisa in his name, complete with a cardboard cutout of the Prime Minister dressed as Prabhu Ram, flex banners and cameras rolling. The same media that ignored the anger at Jantar Mantar now obediently records the Aarti. This is the classic counter move. When the narrative of invincibility begins to crack under real pressure, the response is not deeper accountability. The response is to double down on devotion, to elevate the individual even higher so that the criticism itself starts looking like blasphemy. Meanwhile, on social media, videos from the Kanwar Yatra continue to circulate. Vulgar dances, loud music, behavior that has little to do with the solemnity of a
religious pilgrimage or the religion itself. These clips do not represent Hinduism. They reduce our living tradition to spectacle and excess. And yet, in the same breath, we are asked to accept a Chalisa for a sitting Prime Minister as an act of pure faith. So the question writes itself: if vulgarity during a sacred yatra does not provoke the same outrage, and if turning a living politician into an avatar is celebrated as devotion, then what exactly is under threat? Ask yourself. हिंदू खतरे में है? जय हिंद, सत्यमेव जयते।